Hello students. Now in the previous practical we have already seen the spot A. Inside the spot A where we have already learned the various kind of or the different types of pollination. Now in the second practical, now this spot B, again there is a question number 4 and inside the question number 4 there is a spot B and the spot B which is meiosis. Now here in the spot B you have to identify the various types of meiosis stages. अभी यहाँ पे आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, कोई भी meiosis से रिलेटेड एक स्टेज दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ चार्ट. आपको वहाँ पे एक डायग्राम रखा जाएगा चार्ट फॉर्मेट में, वहाँ पे लेबल सारे हटा देंगे एंड यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेज ऑफ meiosis इज इट. Now here the aim of the practical which is to study and identify the different stages of meiosis. यहाँ पे आपको meiosis के various stages find out करने हैं. Now here I am going to explain you what is meiosis and what are those various stages. I think in the 11th standard you have already learned about the mitosis and the meiosis. And there you have already learned about the various kind of stages of mitosis and the meiosis. Now here we are not taking mitosis, but here we have to identify the various stages of meiosis. Now here student, here we'll see the little bit introductory part of the meiosis. What is exactly meiosis is it and what exactly happened inside in the meiosis stages. Now here principle of the meiosis, you can see in their handbook, like the meiosis is the special type of cell division that occurs in the diploid reproductive or the germ tissue. Now meiosis is the reproductive division or the germ tissue, means the meiosis which can be specially occurred in the reproductional part. यहाँ पे जो meiosis जो होता है वो क्या होता है, reproductive division होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फॉर्म होता है एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म इन द जर्म टिश्यूज. नाउ हियर द meiosis which is the reduction division that result in the formation of 4 haploid daughter cells, each receiving half of the total number of chromosome than those present in the mother cell from which it is produced. Now here you can understand with the help of this statement जो meiosis जो है वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शनल डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन मतलब जहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल से हमको क्या मिलता है, 2 हैप्लॉइड सेल से एक हैप्लॉइड सेल मिलता है. मीन्स देयर विल बी द डिप्लॉइड, फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल यू विल गेट द 1 हैप्लॉइड सेल्स और वही डॉटर सेल्स क्या होंगे, 4 डॉटर सेल्स में आगे जाके डिवाइड होंगे. Now here you can understand with the help of the diagram also there is a various stages in the meiosis. Now here are those stages. There are meiosis is divided into 2 stages. The first one is the meiosis 1 and the second one which is the meiosis 2. Now here with the help of the diagram you can understand the meiosis is divided into stage 1 which is meiosis 1 and stage 2 which is meiosis 2. Now here you can see with the help of the diagram meiosis 1 which is divided into 4 phases: interphase, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and the telophase 1. Now there is the telophase meiosis 1 which can stop here till the telophase 1. Now here in the meiosis the prophase which is the longer phase. In the prophase there are the 5 phases. The prophase 1 which is from the meiosis 1. जो prophase 1 जो है आपका meiosis 1 का वो 5 stages में divide हुआ है, 5 phases में divide हुआ है. Which are those 5 phases? Leptotin, zygotin, pachyotin, diplotin and dikinesis. These are the 5 phases where the prophase 1 is getting divided into this 5 phases. अब ये 5 phases में divide होने के बाद there will start the metaphase 1. इसके बाद क्या start होगा अपना, metaphase 1, then anaphase 1 and then telophase 1. And
after this phases, again there will be, after the telophase 1, there will be the cytokinesis 1. Okay. And after the cytokinesis 1, cytokinesis means there is an actual cell division. After the cytokinesis 1, there will be the starting, there will be the beginning of meiosis 2. वहाँ पे क्या होगा? meiosis 2 का starting होगा. और meiosis 2 का starting कैसे होगा? Karyokinesis 2 and the cytokinesis 2. So the meiosis 2 which is divided into the two phases. meiosis 2 दो phases में divide हुआ है. तो क्या है वो दो phases? वो है karyokinesis 2 and cytokinesis 2. Now here in the meiosis 2, there will be the starting with the karyokinesis 2. Now karyokinesis 2 which is containing, it is also containing the 4 sub-stages. Now which are those 4 sub-stages? Now before starting the karyokinesis 2, the karyokinesis means the chromosomal division, means the exact chromatin material division, which is karyokinesis 2. Now here the karyokinesis 2 which is divided into the 4 phases. Now here those 4 phases which is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. And after the telophase 2 there will be again cytokinesis 2. Okay. Now there will be the actual division of the cell. Now here we will see the prophase 1. Now here the prophase 1 which is the phase of meiosis 1. Now the meiosis 1 which is the reductional division, in which the chromosome number is reduced to half of the number of chromosome present in the parent cell. मतलब meiosis 2 में क्या होता है स्टूडेंट्स? meiosis 2 में reductional division होता है. और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? जो पेरेंट सेल्स होते हैं, पेरेंट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, उसमें से क्या होगा? जो हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे वो पेरेंट से कहाँ पे आएंगे? डॉटर में आएंगे. नाउ इट इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेजेस. नाउ meiosis 1 is also completed into 2 stages. Which are those 2 stages? Which is karyokinesis 1 and cytokinesis 1. Karyokinesis जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, karyokinesis means the chromosomal division, which is karyokinesis 1 which is occurred in the meiosis 1, and cytokinesis 1. Cytokinesis 1 means which is the actual cell division, actual cytoplasmic division. अब हम क्या देखेंगे meiosis 1 में? meiosis 1 में पहला स्टेज आएगा, दैट इज karyokinesis 1. karyokinesis 1 mean actual chromosomal division, chromatin division. Now here with the help of diagram you can understand that is the prophase 1. Now here you can see the prophase 1 which is divided into the 5 phases: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. Now with the help of this diagram you can understand what exactly happened in this 5 stages. Now the prophase 1 which is the initially very lengthy phase in the meiosis 1. Now remember one thing, in the meiosis 1 there are 4 phases, right? 4 phases. The 4 phases which are prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Now the prophase 1 which is the lengthy phase. lengthy phase मतलब बहुत बड़ा प्रोसीजर है जहाँ पे prophase 1 is divided into the 5 phases which is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. Now here in the prophase 1 you should know the various stages. आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कि कौन से स्टेजेस है और उन स्टेजेस में क्या क्या होता है. Now here with the help of diagram you can understand the leptotin. Leptotin न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म है. Then zygotin bivalent forming. Pachytin, you can see the changes in the diagrams with variously. Below the diagram you can see, below the cell you can see with the arrow
there is a first diagram which is the leptotin, replicated chromosome contains. Then second, synaptonemal complex forming and synapses beginning. Then in the third, pachytin, a bivalent has formed and the crossing over has occurred. And now in the fourth, that is the diplotin. Inside the diplotin, you can see the synaptonemal complex dissociates. And the diagram number 5, there is a dikinesis. In the dikinesis, there is an end of prophase. Now with the help of this diagram, you can understand what exactly happened in the prophase 1. Now here students, also remember this thing that we are not going to perform any experiment in this practical. We will not going to write any aim, any requirement, any principle or any kind of procedure in this practical. Here you have to go on spot A in your exam. स्पॉट ए के पास जाना है, वहाँ पे चार्ट को ऑब्जर्व करना है, चार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मियोसिस का एक्चुअल फेज है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम. और जो चार्ट्स हमने आपको ये वीडियो में दिखाए हैं वही चार्ट्स हम एग्जाम में रखेंगे और आपको वही ऑब्जर्व करके क्या करना है, उसके बारे में 2 पॉइंट्स या फिर 3 पॉइंट्स एग्जाम में लिखने हैं जो हमने आपको दिए हैं. ओके, नाउ हियर विल स्टार्ट विद द प्रोफेज 1. Now here the leptotin, you can see the diagram of the leptotin. This is the chart of leptotin which we will going to keep in the exam, and you have to draw this diagram. You have to draw this diagram on the both side blank page, and here we have also given the 3 points of the leptotin which you have also write it down on both side ruled page. Both side ruled page पे क्या करना है, ये आपको लिखना है. Okay, now here is the leptotin. Leptotin, which is the initially the chromosome start condensation and they became compact during leptotin. Leptotin कैसा है, इनिशियली क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कंडेंसेशन होना शुरू होता है, दे बिकम कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग लेप्टोटिन. क्लोजली पैक्ड क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है आपको डायग्राम में. नाउ विद द डायग्राम you can also read the labels. The nuclear membrane, nucleolus is present, chromatin network is there, slender chromosome is there. अभी लेप्टोटिन में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये सब मटेरियल दिखाई दे रहा है. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज दे बिकम कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग द लेप्टोटिन. कॉम्पैक्ट मतलब क्लोजली टाइटली एक दूसरे को कैसा दिख रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल पैक्ड है ना एक न्यूक्लियस में. नाउ हियर इन द थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक लॉन्ग थिन बीडेड थ्रेड. अभी क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है आपको, थ्रेड के स्ट्रक्चर के जैसा. मतलब एक्चुअल क्रोमोसोम का शेप इसको अभी तक आया है क्या, नहीं है. तो वो कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थिन है एंड बीडेड थ्रेड्स. बीडेड थ्रेड मतलब बीच बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द न्यूक्लियोलस. मतलब न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है लेप्टोटिन में एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है लेप्टोटिन में. तो then you can understand what exactly happened in the leptotin. Now this is zygotin, which is the second phase of prophase 1. So the zygotin is the second phase of prophase 1. With the help of diagram, again you can understand the zygotin. Zygotin where the cell wall, cell membrane, pair of homologous chromosomes showing synapses. Now there in the first diagram in the leptotin, आप क्या देख रहे थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, बीडेड फॉर्मेट था. देन जो क्रोमोसोम्स का जो लेंथ था वो कैसा था, एकदम बड़ा था और क्लोजली पैक्ड क्या था, क्रोमैटिन मटेरियल था. बट इन द zygotin with the help of the diagram you can understand there is a homologous chromostat pairing. अभी आपको एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स का शेप दिखाई देगा इसमें zygotin में. कैसा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग. होमोलॉगस मतलब सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, होमोलॉगस मतलब सिंगल पेयर एंड दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस. और इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस. द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड. इस स्ट्रक्चर को
हम क्या बोलते हैं क्रोमोसोम के ये वाले स्ट्रक्चर को बाइवैलेंट्स और टेट्राड भी बोला जाता है. सो दिस इज योर सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 एंड हियर with the help of points and with the help of chart you can identify very easily, because in the zygote there will be the synapses can occur. Now here again we will going to hide the label of the diagram and you have to identify which phase it is. Okay, now this is the phase which is the zygote. Now we'll move to the next phase which is Pachytene. So now in the Pachytene there will be the centromere is present, pair of sister chromatids, non-sister chromatids showing crossing over. Okay, now here with the help of the diagram you can understand. अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमियर मिल रहा है. सेंट्रोमियर मतलब स्टूडेंट्स, सेंट्रोमियर मतलब जो क्रोमोसोम के पी एंड क्यू आर्म को, मतलब जो आर्म्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, वो क्या करता है, अटैच करके रखता है दोनों को एक साथ. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, मिडल पॉइंट वेयर द क्रोमोसोम गेट अटैच टू ईच अदर. अभी यहाँ पे पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स भी है. पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब जहाँ पे सेम लोकस मतलब जेनेटिकल मटेरियल या फिर जीन्स, एक क्रोमोसोम के स्टैंड, जो एक पूरा क्रोमोसोम होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सेम जेनेटिकल मटेरियल होता है, सेम जीन्स होते हैं, ये वाले आर्म पे भी और दूसरे वाले आर्म पे भी. लेकिन दो पेयर लेंगे हम, एक मतलब एक क्रोमोसोम और उसके साथ दूसरा क्रोमोसोम, तो क्या होगा, दोज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. मतलब ये क्रोमोसोम में क्या होगा, जेनेटिकल मटेरियल अलग होगा और दूसरे क्रोमोसोम में क्या होगा, जेनेटिकल मटेरियल भी अलग होगा. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है इसमें ये स्टेज में क्या होगा, एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर होगा. Okay, now with the help of given points you can understand the first point which is crossing over of non sister chromatids. आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू सच एक्सचेंज. क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब स्टूडेंट्स, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन मतलब जहाँ पे एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, क्रोमोसोम ट्रांसफर करते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लो, नाउ मम्मी एंड डैडी, तो क्या होगा, हम जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, हमारे मम्मी और पापा का. तो क्या हो रहा है, हमारे मदर की तरफ से भी क्या आ रहा है, हमको जेनेटिकल इंफॉर्मेशन आ रहा है, एंड फादर की तरफ से भी क्या हो रहा है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन आ रहा है. तो वो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, मतलब एक जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो मम्मी की तरफ से है, दूसरा जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो फादर की तरफ से है. तो दोनों जेनेटिकल इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रहा है. तो देयर विल बी द जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन. तो हम क्या है, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन है किसका, हमारे मदर एंड फादर का. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन. ओके, नाउ we'll move into the third point which is the homologous chromosome still remain paired together at the site of crossing over. अभी आप ये क्रोमोसोम्स के लास्ट एंड में देखेंगे जहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में. तो अभी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे को अभी तक अटैच है एक दूसरे से, वो अलग नहीं हुए हैं. नाउ देयर इज अ प्रोसीजर विच इज कैरिड आउट विच इज द जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन. क्या कर रहे हैं वो, वहां पे रुक के अपना जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. ओके, नाउ moving to the next phase which is diplotin. Diplotin which is the phase of prophase 1 which is the fourth phase of prophase 1. अभी diplotin में क्या होता है, with the help of the diagram you can understand there is a centromere and chiasma. क्या है यहाँ पे, centromere है and chiasma है. chiasma मतलब एक्चुअल में जो एक पेयर ऑफ एक आर्म जो है क्रोमोसोम का दूसरे आर्म के साथ क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, एक्स शेप बना रहा है. एक्स शेप मतलब काइज़मा, मतलब दूसरा क्रोमोसोम
एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्या कर रहा है, अपना एक काम क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है. दैट इज द एक्चुअल काइज्मा विच इज कॉल्ड इट एज द डिप्लोटिन फेज. वो किस में होता है एग्जैक्टली? काइज्मा फॉर्मेशन डिप्लोटिन फेज में ही होता है. ओके, नाउ हियर विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट रिपेलिंग फ्रॉम ईच अदर. अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, राइट. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दूसरे के साथ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. उसके बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. रिपेलिंग मतलब दोनों एक दूसरे से पुश करने की कोशिश करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक दूसरे से पेयरिंग हटा देंगे. Now with the help of second point you can understand they remain attached at the chiasmata. लेकिन वो कहाँ पे अटैच रह रहे हैं, कायस्माटा, जहाँ पे लास्ट आप देख रहे हैं एक डायग्राम में जहाँ पे लेबल किया है कायस्मा. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट जहाँ पे एंडिंग है वहाँ पे क्रॉस एक्स शेप दिख रहा है, वहाँ पे क्या रहेंगे, वो अटैच रहेंगे सिर्फ. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गेट डिसॉल्व. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पे. Now here with the help of diagram you can understand what exactly happened in the diplotin. एंड डिप्लोटिन में क्या होगा वो आपको दिख रहा है. अभी ये सेम चार्ट जो है जो मैंने आपको दिखाया है वही एग्जाम में हम रखेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है. सिर्फ हम क्या करेंगे, लेबल्स हाइड कर देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है और स्पॉट बी में 3 पॉइंट्स लिखने हैं. Now moving to the dikinesis which is the last phase of prophase student. अभी प्रोफेज का फर्स्ट फेज हमने कौन सा देखा था, दैट इज लेप्टोटीन. सेकेंड फेज इज जाइगोटीन. थर्ड फेज इज पचाइटीन. फोर्थ फेज इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ फेज विच इज डाइकाइनेसिस. अभी डाइकाइनेसिस इज द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1. मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 जो होता है उसका लास्ट फेज कौन सा है, डाइकाइनेसिस, जहां पे कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब जहां पे एक्चुअल में जेनेटिकल मटेरियल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है क्रोमोसोम का. Now with the help of point, with the help of diagram you can understand. See students, you can see there is a nuclear membrane is disappearing. यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसअपियर होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे. एंड होमोलोगस क्रोमोसोम शोइंग कायस्मा एंड टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन मतलब खत्म होना, एंड होना प्रोसीजर का. अभी यहाँ पे जो होमोलोगस पेयर है जहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम शोइंग कायस्मा एंड टर्मिनलाइजेशन, वहाँ पे क्या होगा, एंड हो जाएगा, मतलब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है, और वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज इज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा. जैसे फर्स्ट लेप्टोटीन में आपने देखा था, लेप्टोटीन में जो एक्स शेप बना रहा था क्रोमोसोम, ठीक है, वो एक्स शेप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे वो आर्म्स एक दूसरे से, और वो खुल जाएगा. और खुल जाने के बाद क्या होगा, देयर इज अ टर्मिनेशन ऑफ द कायस्माटा. नाउ इन द सेकेंड पॉइंट देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ कायस्माटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमैटिड्स टेक प्लेस. अभी क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ कायस्माटा टुवर्ड्स द क्रोमैटिड टेक प्लेस. शिफ्टिंग हो रहा है कायस्माटा. शिफ्टिंग मतलब एक दूसरे से वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं. नाउ हियर न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियोलस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड न्यूक्लियस मतलब जो एक्चुअल न्यूक्लियस होता है, जो क्या करता है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या करता है, कंटेन करता है. नाउ देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज एंड डिसअपियर. अभी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज एंड डिसअपियर हो जाएगा. ओके अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हमारा डाइकाइनेसिस खत्म हो गया है. डाइकाइनेसिस खत्म हो गया मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा यहाँ पे धीरे धीरे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज अवर मेटाफेज 1. प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू 5 phases.
मियोसिस 1 का प्रोफेज जो है वो 5 फेजेस में डिवाइड है, जो हम लोगों ने अभी देखे। अभी प्रोफेज 1 के बाद जो एक्चुअल फेज जो शुरू होता है वो है मेटाफेज 1। नाउ हियर with the help of diagram you can understand what is exactly going to happen in the metaphase 1. metaphase 1 में क्या होगा अभी स्टूडेंट्स? metaphase 1 में you can see there is a spindle fiber, homologous chromosomes, bivalent on equator and spindle and the poles. Now here there is a change in the metaphase 1. metaphase 1 में आपको सडन चेंज दिखाई देगा। क्या चेंज दिखाई देगा कि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर के स्पिंडल फॉर्म जो है आपको दिखाई देंगे, पोल्स दिखाई देंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होता है वैसे स्पिंडल फाइबर आपको नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में दिखाई देगा। लेकिन जो क्रोमोसोम्स जो है वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगे? इक्वेटोरियल पोल पे। इक्वेटोरियल पोल पे होमोलॉगस क्रोमोसोम, बाइवैलेंट, और कहाँ पे दिखाई देंगे? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब अभी अर्थ जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट? एंड द मिडल पार्ट विच इज कॉल्ड इट एज द इक्वेटोरियल पोल, इक्वेटोरियल प्लेन। सो इक्वेटोरियल प्लेन मतलब मिडल पार्ट में आ जाना। तो वैसे ही जैसे हमारा सेल मेटाफेज 1 में जाता है, तो मेटाफेज 1 में जाने के बाद हमको क्या सडन चेंज दिखाई देता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स दिखाई देते हैं। और क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे दिखाई देता है? इन द मिडल ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब बीच में आ जाते हैं। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स यू कैन अंडरस्टैंड spindle formation is completed. Now in the metaphase 1, which is very important point, there is a spindle fiber formation. मतलब हमको नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या दिखाई देगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन दिखाई देगा। Now here with the help of second point you can understand an imaginary line, equatorial plane develops at the center of the cell. इमेजिनरी लाइन्स मतलब जैसे डॉट डॉट के शेप में आपको जो लाइंस दिखाई दे रही है उसको उन्होंने इमेजिनरी लाइंस बोला है। एंड द इक्वेटोरियल प्लेन डेवलप्स एट द सेंटर ऑफ द सेल। कहाँ तक दिखाई देंगे आपको लाइंस? वो आपको लाइंस सेंटर के तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। कहाँ पे? सेंटर की तरफ मतलब इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ, जहाँ पे हमारे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? अरेंज किए गए हैं। तो आपको होमोलॉगस पेयर कहाँ पे दिखेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन में। तो मेटाफेज 1 की खासियत ही यही है, जहाँ पे क्या दिखाई देता है हमको? जो क्रोमोसोम के होमोलॉगस पेयर है वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एट द एंड ऑफ द स्पिंडल टेक्स प्लेस विच हेल्प्स इन द अरेंजमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी ये स्पिंडल फाइबर वहां पे क्यों है? वो क्या करते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन पे रहने के लिए, वहां पे स्टेबल रहने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अभी क्या होगा? धीरे धीरे वो वहां से मूव करना शुरू करेंगे, वहां से उनका क्या होगा? मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट फेज विच इज एनाफेज 1। अभी हम लोगों ने फिर से देखा मियोसिस 1 इज डिवाइडेड इनटू first phase which is prophase 1 and prophase 1 which is divided into the 5 phases and the second phase is metaphase 1. अब मेटाफेज 1 में हमने देख लिया कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हमको कैसे दिखाई देता है। अब हम मूव करेंगे एनाफेज 1 में। अब एनाफेज 1 में एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स? एनाफेज 1 में यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन द डायग्राम, अगेन देयर इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो पेयर दिख रहा है आपको, उसका पोजीशन में आपको वापस क्या दिखाई देगा? चेंज दिखाई देगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ सेपरेटिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी ये जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, हमारा अर्थ है। अर्थ जो 2 हिस्सों में डिवाइड है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन की वजह से।
अभी हमारे क्रोमोसोम कहाँ पे थे मेटाफेज 1 में? इक्वेटोरियल प्लेन में थे। अभी वो क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ अपोजिट डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ डायरेक्शन। किसके हेल्प के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स के हेल्प के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, आपको थ्रेड लाइक एंड द डॉटेड स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज आवर स्पिंडल फाइबर। नाउ हियर द क्रोमोसोमल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये जो स्पिंडल फाइबर है, क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका लेंथ बढ़ेगा धीरे धीरे। नाउ द क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? अपोजिट पोल्स में ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अपोजिट पोल्स में ट्रैवल करना शुरू करेंगे मतलब नॉर्थ साइड एंड द साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ डायरेक्शन में क्या करेंगे? ट्रैवल करना शुरू करेंगे। ईच क्रोमोसोम इज विद 2 क्रोमैटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर। हर एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल तो करेगा, लेकिन किसके साथ ट्रैवल करेगा? 2 क्रोमैटिड्स। जो एक आर्म होता है ना, जो 2 आर्म होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और जो मिडल वाला पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर जो होता है ना, एग्जैक्टली वो क्या करता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाता है। किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर के थ्रू। ओके, नाउ हियर आई थिंक you must have understand what exactly happened in the anaphase 1. It is a very simple phase, student. See, if you will going to observe it very carefully, so meiosis 1 is the very easiest phase where you can understand the various phases and there is a difference between the phases. जैसे कि अपने फर्स्ट स्टार्टिंग के फेजेस से देखा है, आपको हर एक फेज में क्या दिख रहा है? चेंजेस दिख रहा है। कहीं पे बाइवैलेंट है, कहीं पे सिनॉप्सिस है, कहीं पे डाइकाइनेसिस हो रहा है, कहीं पे जेनेटिकल मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, कहीं पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है। सो देयर विल बी द सर्टेन चेंजेस। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला अगर देख ले डायग्राम को, तो वो एकदम सिंपल वे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कौन सा फेज है करके। अगर आप थोड़ा सा भी इसका स्टडी करेंगे, सो यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड विच फेज इट इज। ओके, नाउ अवर एनाफेज 1 विच हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड हियर, जहाँ पे मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 जो है, इसके हमने 3 पॉइंट देखे हैं और वो क्या हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो गया है। नाउ अभी सेल किस में जाएगा? टेलोफेज 1 में जाएगा। एक सेल जो होता है ना, वो एक कंटिन्यूअस साइकिल क्या करता है? फॉलो करता है, जहाँ पे 4 स्टेजेस होते ही होते हैं। कौन से 4 स्टेजेस स्टूडेंट्स? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये उसका एक पैटर्न है, वो यही पैटर्न फॉलो करता है अगर उसको सेल साइकिल में क्या करना है? ट्रैवल करना है। तो अब ट्रैवल करने के लिए उसको वेरियस स्टेजेस से क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि अगर हमारे पेरेंट्स है, उनका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, तो क्या होना चाहिए? मियोसिस होना चाहिए। ग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए? माइटोसिस होना चाहिए। So this is the procedure where the cell is following its own cycle with this 4 phases. अब लास्ट फेज जो है वो कौन सा है मियोसिस 1 का? दैट इज टेलोफेज 1. Now with the help of diagram you can understand there is a telophase 1 and the cytokinesis. अब आपको एक ही डायग्राम में दोनों भी दिखाई देंगे. क्यों? क्योंकि दिस इज द अटैच. टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस मतलब एक्चुअल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जहां पे एक्चुअल 2 डॉटर सेल्स क्या होते हैं? बनते हुए दिखाई देते हैं, जहां पे हमको 2 डॉटर सेल्स दिखाई देते हैं. ठीक है. न्यूक्लियोलस गेट रीऑर्गेनाइज एंड देन रीअपियर. अभी जहां पे मेटाफेज 1 में जहां पे न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा था? डिसअपियर्ड हो रहा था. लेकिन अभी क्या हो रहा है? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? रीअपियर होगा, वापस से मिलेगा. क्यों? क्योंकि नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. अगर नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगेगा, वापस से न्यूक्लियोलस लगेगा, है कि नहीं? Now nuclear membrane get developed around each set of chromosome.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेंगे, वापस से नए सेट ऑफ क्रोमोसोम तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। कहाँ पे, डॉटर सेल्स के अंदर आपको वापस क्रोमैटिन मटेरियल क्या करेगा, दिखाई देगा। नाउ द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर्स जो थे, स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है कि क्रोमैटिन मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल एक्सचेंज करना और उनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको एक डॉटर सेल से एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स मिल सकते हैं, है कि नहीं। तो स्पिंडल फाइबर उसके लिए यूज होता है। नाउ हियर द स्पिंडल फाइबर का अभी यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देयर इज अ डॉटर न्यूक्लियस, टू डॉटर सेल्स आपको मिल रहे हैं। सो स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएगा। Now with the help of diagram you can understand there is a daughter nucleus, cell plate, nuclear membrane, nucleolus and the chromatin network। अभी यहाँ पे भी आपको सेल प्लेट जो होता है वो किस में दिखाई देता है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल जब लास्ट फेज में आता है, दैट इज टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में जब वो एंट्री करता है, तभी क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सेल प्लेट। लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट, जब हम एनिमल सेल का स्टडी करते हैं, तभी एनिमल सेल जब क्या करता है, मियोसिस फॉलो करता है, और मियोसिस फॉलो करने के बाद टेलोफेज 1 के फेज में जाता है, और टेलोफेज 1 से साइटोकाइनेसिस में एंट्री मारता है, तभी वहां पे क्या फॉर्म होता है, सेल फरो। प्लांट सेल में सेल प्लेट और एनिमल सेल में सेल फरो। ओके, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये डिफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ हियर टेलोफेज 1 इज नाउ गेटिंग ओवर। टेलोफेज 1 के साथ जो हमारा नेक्स्ट फेज जो है, वहां जहां पे हमारा सेल क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, दैट इज साइटोकाइनेसिस 1। टेलोफेज 1 में ही है, लेकिन टेलोफेज 1 से किस में जाएगा, साइटोकाइनेसिस 1 में जाएगा। अभी साइटोकाइनेसिस 1 में जाने के बाद क्या चेंजेस आता है, it can be occurs by the formation of cell plate in plant cells which is formed at the equator of the dividing cell। बीच में आपको एक प्लेट दिखाई देगा, दो सेल्स है और उसके बीच में एक प्लेट दिखाई देगा। and the two daughter cells forms are having single haploid nucleus each। तो दो डॉटर सेल्स को क्या मिलेंगे, अपना खुद का सिंगल क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा। ओके, एंड देयर विल बी द न्यूक्लियोलस ऑल्सो एंड द न्यूक्लियस ऑल्सो, सिंगल न्यूक्लियस ऑल्सो। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ ई स्टेजेस है जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं मियोसिस के दो स्टेजेस को। इसके लिए उन्होंने मियोसिस को दो स्टेजेस में डिवाइड किया है। दोज आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो आपको 1, 2 लिखना बहुत नेसेसरी है एग्जाम में, तो वो अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। Now moving to our next part, that is the meiosis 2. So the meiosis 2 which is divided into two parts, which is the karyokinesis 2 and the cytokinesis 2. अभी karyokinesis जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, karyo means chromosomal, kinesis means division, karyokinesis means chromosomal division। पहले क्या होगा, सेल में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा, फिर दो सेल्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे। Then the second is the cytokinesis. Cytokinesis means exact cell division। फिर इसमें जो सेकेंड प्रोसीजर में क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड द साइटोकाइनेसिस 2, क्योंकि क्या शुरू हो गया है, मियोसिस 2 शुरू हो गया है। मियोसिस 1 के फेजेस खत्म हो गए हैं। अगर मियोसिस 1 में जाते हैं तो मियोसिस 1 में क्या मिलता है, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में आपको क्या मिलेगा, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। नाउ हियर द meiosis will starting with the prophase 2. Now as I told you student already, in the meiosis there will be the prophase 1, and the prophase 1 is the very lengthy procedure which is divided into the 5 phases. But here our meiosis 2 is a very simple procedure. There is no division of any kind of phases. यहाँ पे कोई भी प्रोफेज का कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ है कोई भी फेजेस में। ये सिंपल प्रोफेज क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे स्लाइटली चेंज दिखाई देगा, किसमें, डायग्राम में।
पहले क्या था, सिंगल न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस था। अभी यहाँ पे क्या है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो डॉटर सेल्स है, मतलब दो सेल्स आपको दिखाई देंगे और वो दो सेल्स अगेन डिवाइड होंगे 4 सेल्स में। तो वो कैसे डिवाइड होंगे, तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे डिवाइड होते हैं टिल द टेलोफेज 2 के फेज तलक, ठीक है। अभी आप देखेंगे इट इज द इनिशियल फेज। प्रोफेज 2 क्या होता है, इनिशियल स्टेज होता है किसका, मियोसिस 2 का। द न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस क्या होते हैं इसमें एग्जैक्टली एनलार्ज हो जाते हैं। आपको डार्क कलर के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं दो डॉटर सेल्स में। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, विल रीड द लेबल first of all of this diagram. Cell wall, cell membrane, nuclear membrane and the nucleolus disappearing. अभी धीरे धीरे प्रोफेज 2 में भी क्या होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्यों डिसअपियर होगा, क्योंकि अभी ये जो दो डॉटर सेल्स जो है ना, इनको अभी क्या करना है, डिवाइड होना है। किसमें, और दो डॉटर सेल्स बनेंगे इससे, मतलब ये दो सेल्स से 4 सेल्स बनेंगे। Now you understand why there is a prophase 2. Now there is a chromosome become prominent. क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, प्रोमिनेंट हो जाएंगे। डार्क कलर के क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, शॉर्टर एंड थिकर। कैसे दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम, लेंथ में शॉर्टर दिखाई दे रहे हैं, और कैसे है, थिकर दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज अवर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में आपको यही एक्टिविटी क्या दिखाई देगी, यही एक्टिविटी दिखाई देगी। नाउ विल अगेन रीड द पॉइंट्स एंड यू विल जस्ट क्लियर आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो इट इज द इनिशियल फेज, क्या है ये, स्टार्टिंग का फेज है। द न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं, यहाँ के देखो न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्रोमोसोम बिकम्स प्रोमिनेंट, थिकर एंड शॉर्टर। क्रोमोसोम कैसे हो गए हैं, प्रोमिनेंट मतलब डार्क कलर में दिखाई दे रहे हैं। शॉर्टर, साइज कम हो गया है उनका। एंड थिकर, थिकर मतलब डार्क ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। ओके, नाउ द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर। न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। क्यों, अब अगेन ये दो डॉटर सेल्स को क्या होना है, डिवाइड होना है। इससे और दो डॉटर सेल्स बनेंगे, मतलब ये 4 हो जाएंगे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट फेज विच इज अवर मेटाफेज 2। पहले क्या देखा हमने, प्रोफेज 2 देखा, अब क्या देखेंगे, मेटाफेज 2 देखेंगे। अब मेटाफेज 2 में हमको क्या चेंजेस दिखाई देंगे वो हम देखेंगे। नाउ हियर इज द डायग्राम ऑफ द मेटाफेज 2। अब प्रोफेज 1 में या फिर प्रोफेज 1 के जो फेजेस थे उसमें आपने देखा था कि एक सेल था, और एक सेल में आपको स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा था, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब टास्क क्या है इस सेल के पास, कि इसके पास 2 सेल्स है। कितने सेल है, 2 सेल। अब ये 2 सेल को डिवाइड होना है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेल में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जैक्टली डिसअपियर हो गया है। और स्पिंडल फॉर्मेशन डॉट डॉट के स्ट्रक्चर में आपको नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन दिखाई देगा। अभी ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन सिर्फ एक सेल में नहीं हुआ है, दोनों सेल में हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि हमारे पास कितने सेल्स थे, 2 डॉटर सेल्स थे, राइट। अब ये 2 डॉटर सेल्स में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। सेंट्रोमियर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, देन देयर विल बी द पोल एंड देयर विल बी द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स भी दिखाई देंगे। द क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। अभी क्रोमोसोम मेटाफेज, मेटाफेज की खासियत ही यही है। अगर आप मेटाफेज 1 भी लेंगे और मेटाफेज 2 भी लेंगे तो क्या होगा, वहां पे सिर्फ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने के बाद आपको सेंट्रोमियर दिखाई देगा। सेंट्रोमियर आपको दिखाई देने के बाद क्रोमोसोम आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे आते हुए दिखाई देंगे, लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्थ अगर हम डिवाइड करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सॉदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर किसके वजह से डिवाइड होता है, इक्वेटोरियल प्लेन की वजह से डिवाइड होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आ गए हैं, मिडल पार्ट में आ गए हैं, सेल के मिडल पार्ट, इक्वेटोरियल प्लेन जिसको बोला जाता है, ठीक है। नाउ द क्रोमोसोम्स गेट कनेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव पोल बाय द क्रोमोसोमल फाइबर। अब ये क्रोमोसोम किसके हेल्प के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, क्रोमोसोमल फाइबर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर
किसके थ्रू कनेक्ट हुआ है? क्रोमोसोमल फाइबर के थ्रू कनेक्ट हुआ है। नाउ दिस इज द फेज विच इज मेटाफेज 2। जैसे मेटाफेज 1 में होता है वैसे ही मेटाफेज 2 में होता है। बट स्टूडेंट, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2, तो मेटाफेज 1 में आपको सिर्फ एक ही सेल दिखाई देगा जिसमें क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। लेकिन मेटाफेज 2 में आपको क्या चेंज दिखाई देगा? वहां पे 2 डॉटर सेल्स है, और वो जो 2 डॉटर सेल्स में आपको 2 स्पिंडल फाइबर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और 2 सेल्स आपको इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। नाउ हियर विल मूव टू आवर नेक्स्ट stage, which is anaphase 2. Now here the anaphase 2 is starting over. Now anaphase 2 is the student is the very simple. You can understand with the help of diagram only. जैसे मैंने आपको anaphase 1 explain किया था, वहां पे क्या था? एक सिंगल सेल था। अब यहाँ पे क्या है? 2 सेल्स है, और 2 सेल्स में सेम ही क्या स्ट्रक्चर फॉलो अप होगा। With the help of label you can understand there is a separated chromatids. So chromatids pulls toward the opposite poles. Cell wall is present and cell membrane is present. Okay? अभी जैसे एनाफेज 1, अगर एनाफेज 1 और 2 को साथ में रखेंगे तो क्या होगा? एनाफेज 1 में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा? सिर्फ एक डॉटर सेल है, और एनाफेज 2 में आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स है, राइट? अब वो 2 डॉटर सेल्स क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। Now anaphase 2, the centromere of each chromosomes divides and the chromatids are separated. इसमें भी सेम होगा एनाफेज 2। एनाफेज तो एनाफेज ही है, चाहे वो 1 है या फिर 2 है, उसमें सेम ही फॉलो अप होगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ सेल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 2 में। तो 1 से यहाँ पे एनाफेज 1 में 1 है, तो एनाफेज 2 में क्या हो जाएंगे? 2 दिखाई देंगे सेल्स। तो वो 2 में हमको क्या दिखाई दे रहा है? यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन सी द चेंज इन द स्टेज, यू कैन सी द चेंज इन द फेज विच इज क्रोमैटिक मटेरियल आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होते हुए दिखाई देगा। 2 डॉटर सेल्स में क्या होगा? क्रोमैटिक मटेरियल आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होते हुए दिखाई देगा। दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। पहले कहाँ पे था हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल? क्रोमोसोम कहाँ पे था? मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेन में था। लेकिन अभी आपको क्या चेंज दिखाई देगा एनाफेज 2 में? जो क्रोमैटिन मटेरियल जो है, जो क्रोमोसोम्स जो है, नॉट क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम जो है वो क्या दिखाई देंगे? अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे? ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे। किसके वजह से? विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का काम क्या है स्टूडेंट्स? जो एक्चुअल में क्या करता है? क्रोमोसोम्स जब क्रोमैटिन मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं तब वो उनको खींचता है। मतलब आधा जेनेटिकल मटेरियल ये साइड जाएगा साउथ डायरेक्शन में, और आधा जेनेटिकल मटेरियल कहाँ पे जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो क्या होगा? ऐसे क्या होगा? जेनेटिकल इंफॉर्मेशन क्या होगा? दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे मेरे 2 स्टूडेंट्स को मेरा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है। अभी मेरे पास कितना कॉपी है इंफॉर्मेशन का? एक ही पेपर में वो सारा इंफॉर्मेशन है। तो मैं क्या करूंगी? वो पेपर को 2 हिस्सों में फाड़ के दोनों के पास इंफॉर्मेशन दूंगी क्या? नहीं, दैट इज द रॉन्ग वे टू ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। मैं क्या करूंगी? मेरे वो इंफॉर्मेशन पेपर का 2 जेरोक्स कॉपी निकालूंगी। वो 2 जेरोक्स कॉपी निकालने के बाद एक कॉपी किसको दूंगी? एक स्टूडेंट को दूंगी, और दूसरा कॉपी दूसरे स्टूडेंट को दूंगी। दिस इज द राइट वे टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। जिससे क्या होगा? मेरे दोनों स्टूडेंट्स के पास क्या जाएगा? इक्वल अमाउंट में इंफॉर्मेशन जाएगा। वैसे ही सेल भी वैसे ही काम करता है। क्या करता है? जब वो अपना कॉपी बनाता है तब वो क्या करता है? एग्जैक्ट कॉपी दोनों सेल, जब वो डिवाइड होता है तो दोनों सेल्स में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर्म होता है, और हमारे जो क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। नाउ हियर ईच क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमैटिड्स। नाउ हर क्रोमैटिड्स को क्या बोला जाता है? डॉटर क्रोमैटिड्स बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट कंडेंसिंग, becoming shorter and shorter, pulling the daughter chromosomes up to the opposite pole. अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? शॉर्टर हो जाते हैं। शॉर्टर मतलब क्रोमोसोम जो है वो 4 आर्म में डिवाइड होता है, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, पी आर्म एंड द क्यू आर्म। तो ये जो 2 आर्म जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू। सेंट्रोमियर से एक आर्म जो होता है वो ये साइड चला जाता है, दूसरा आर्म जो होता है वो ये साइड चला जाता है। सो दे विल बी पुलिंग अवे टू द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ डायरेक्शन। तो पुल होने के बाद क्या होगा? वो जो
क्रोमोसोम जो था, बड़ा क्रोमोसोम जो था वो कैसा हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा साइज में, राइट। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 में आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। सो इट इज रियली रियली इजी टू आइडेंटिफाई एनाफेज 2 and you can also differentiate what is anaphase 1 and what is anaphase 2. Okay students, now moving to our last phase of meiosis 2. meiosis 2 का जो last phase जो है वो क्या है, telophase 2. now here is our telophase 2. now this is our telophase 2. अब telophase 2 जो है आप देखेंगे there is a huge difference in the telophase 2. टेलोफेज 1 में आपने देखा था कि 2 डॉटर सेल्स आपको मिल रहे थे। अब टेलोफेज 2 में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, आपको 4 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, क्रोमैटिन मटेरियल भी है, लेकिन क्या है, सेपरेट सेपरेट सेल्स है, 4 सेपरेट सेल है जिसमें सब मटेरियल प्रेजेंट है जैसे एक सेल में होना चाहिए। Now there is a nucleus, separation of the daughter cells due to the cell plate formation. यहाँ पे भी सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था एनिमल होगा तो सेल फॉरो फॉर्म होगा, एनिमल सेल का स्टडी करेंगे तो क्या मिलेगा, सेल फॉरो मिलेगा। लेकिन अगर प्लांट सेल का स्टडी कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सेल प्लेट मिल रहा है। Now here you can again see there is a telophase 2 and the cytokinesis. तो telophase 2 में exactly क्या होता है, the daughter chromosomes get collected at the opposite poles. daughter cells क्या होते हैं, opposite poles में क्या कर रहे हैं, opposite poles में क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे daughter chromosomes, and the nucleolus reappears and the nuclear membrane is formed around each group of chromosome. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो हमारा मेटाफेज 2 में और एनाफेज 2 में जो डिसअपियर हो गया था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, तो वो डिसअपियर हो गया था। अभी क्या हो गया, वो वापस से रीअपियर हो गया क्योंकि न्यू सेल फॉर्म होंगे और न्यू सेल्स के लिए हमको क्या लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस वापस लगेगा। ओके, नाउ एट द एंड 4 nuclei are formed. So here you can see there is again 4 nuclei, 4 nuclear membrane, 4 nuclei, 4, there is a chromatin material in the each nucleus. So here is the 4 daughter cells. Now you can understand with the help of the diagram. और cytokinesis means आपको cytokinesis में क्या दिखाई देगा exactly, there will be the cell plate. Okay, cell plate will be there and there is a separation of the daughter cells due to the cell plate formation. So you can see in the diagram. Thank you student. These are the 12 phases which is of meiosis 1 and meiosis 2. So again there is a meiosis 1 which is divided into 4 phases. The 4 phases are prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Okay, there before the prophase 1 there will be the karyokinesis 1. Okay, so karyokinesis 1 which is divided into 4 sub stages. So now the prophase 1 which is again divided into the 4 phases, which is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and the dikinesis. Then metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. And there will be the again meiosis 2 will going to start after the cytokinesis 1. So meiosis 1 will be starting with the meiosis 2 will be start with the karyokinesis 2, and the karyokinesis 2 will going to follow up the all 4 phases which is the 2, that is the prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and the last phase which is the cytokinesis 2. Now this is the end of our practical or the experiment which is part B, which is of question number 4, which is part B, which is containing 12 stages of meiosis. And here from the 12 stages we will only going to keep any one stage for the exam, and you have to identify with the help of this chart, and we will going to hide all the information about the diagram, and you just have to identify and observe the diagram and write it down the 3 points which we have given you in the practical. Okay, thank you students.